रेडी हो चुके हैं हम लोग जाने के लिए नाश्ते पे डायरेक्ट एयरपोर्ट। हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके थे और इमिग्रेशन करवा चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। टाइम हो चुका है कराची जाने का, बहुत खुशी हो रही है। जब भी ऐसा नहीं होते तो मैं मम्मा के यहाँ होती हूँ, कभी पिकनिक वगैरह पे भी गए होते हैं अगर नाइट स्टे पे, तब भी मैं मम्मा के यहाँ रुकती हूँ। मतलब मैं कभी भी अकेली रुकी नहीं हूँ ना। फ्रीजर में रखते हैं जल्दी से ताकि ये अच्छी तरीके से चिल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बस सुबह मॉर्निंग हो चुकी है, हम लोग उठ गए हैं। अब नाश्ता करने जाएंगे फ्रेश होके और फिर रेडी होना है जाने के लिए एयरपोर्ट। फिर मिलते हैं आपसे नाश्ते पे। A few inches later. रेडी हो चुके हैं हम लोग जाने के लिए नाश्ते पे। बस नाश्ते में जा रहे हैं हम लोग, नाश्ता वाश्ता करेंगे और फिर 12 बजे तक हमें चेकआउट करना है होटल से और 12 के बाद 2 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे हम लोग। और हमारी फ्लाइट है 5:30 बजे की। सही है, तो नाश्ता करने के बाद आपसे मिलते हैं चेकआउट करने के बाद, ठीक है? चले भाई, सबकी पैकिंग हो चुकी है, सब रेडी है जाने के लिए। सब रूम अब से आप चेकआउट करेंगे और फिर हम लोग होटल के अंदर डायरेक्ट एयरपोर्ट। कौन सा गाना लगी? चलो अभी निकल जाओ, चलो। बस के अंदर लोग बैठ चुके हैं और एयरपोर्ट से निकल रहे हैं। बहुत लेट हो गए, 12 बजे का टाइम था, 12:18 हो गए। ठीक है, 3 बजे तक 2 बजे तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। वहाँ पहुँच के आपको एयरपोर्ट दिखाते हैं, बस यहाँ तो रवाना करते हैं। Good future in future, yeah? Any of you not married yet? How many not married yet? How many single? No wife. You single? No, we are married. Single. 2 doors. You single? Yeah. Are you sure? Single. Are you sure? Raise up. Your friend will see you. Single? Which one single? You single? You single? Okay. I wish for the single man will get the future wife. Beautiful, nice also. For those have one wife, in future have another wife. And more kids in the future. Yeah? We are Muslim, can marry until 4 wives. Inshallah. Okay, Malaysian men also like to have 4 wives, 3 wives, 2 wives. Yeah. Second, 2 wives many. Why? Even though here in Malaysia, for the Muslim man, if he want to marry, but his first wife, the one he married, how he do? He go to Thailand to marry, bring the girl, go to Thailand and marry, and after that going back here. A Malaysia man, because here to Thailand, only with the land transport, only 7 hours to 8 hours. It's very near. Go is 7 o'clock in the morning, come back here 6 o'clock. And then it's office hour. 7 to 8 hours with the buses. Thailand. If you go to Singapore, it's only 5 hours. But Singapore cannot marry there. Because that is not cannot. Normally we go to Thailand to marry. And also that illegal also, yeah. But you have, when you go back from Thailand, in Malaysia, you have to register. And government will fine you 1%, 2,000 ringgit. So both new husband wife 4,000 ringgit. Because why? Because if you have baby, if you not registered in Malaysia, you married in Thailand, you not registered in Malaysia, your baby don't have certificate birth. But if you register, your baby have certificate birth, and your baby will become a citizen of Malaysia, and more subsidy you will get for your baby. Yeah, like that. So I already told you where you can get your lunch later, or you can get in the aeroplane. Yeah, Air Asia selling so many food. Yeah, so many food you can buy, but the food in small portion, it's very small. I think you're not enough. Me also when I eat Air Asia, very small. I have to order 2, but your money 50 ringgit can buy 2 meal.
Yeah, can buy 2 meals. And then anything else? Nothing else. So we take a rest. We're near the airport. I will ask you some question. Anybody follow me yesterday? Yesterday bus. You follow me? You also? So near the airport, I will make you wake up and I will give you a few quiz that you can answer. I will give you a prize. Okay? So now we take a rest first. Thank you. हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके थे और इमिग्रेशन करवा चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। बस अब जा रहे हैं, थोड़ी देर में वेटिंग करेंगे। चलिए फाइनली लोग अब जहाज में बैठ गए, टाइम उठ चुका है कराची जाने का, बहुत खुशी हो रही है। क्या कह रहे हो? कहते तुम्हें साथ में बहुत छतरी है मेरी। टेंशन नहीं ले भाई, मेरे आधे एंड पर मुझे समझ में एक जल्दी आ जाए यार। कराची पहुंच चुके हैं अलहमदुलिल्लाह। तो भाई कराची आ चुका है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज काफ़ी दिन बाद आपसे मिल रही हूँ क्योंकि इतने दिन से तो व्लॉग की चेयर असद ने ही संभाली हुई थी। बस वो वहाँ से व्लॉग्स मुझे भेज रहे थे क्लिप्स और मैं सारी एडिट करके व्लॉग्स अपलोड कर रही थी। जैसे कि आप लोगों को पता था कि असद गए हुए हैं मलेशिया, सारी व्लॉग्स आप लोगों ने देख ली हैं। आज वेडनेसडे है और आज असद की वापसी की फ़्लाइट है। तो मैं इतने दिन से थी मम्मा के घर पर। मैं कल रात को ही घर पे आई हूँ और रात को मैं इसलिए आई थी क्योंकि काफ़ी सारे काम थे। असद के लिए खाना भी बनाना है और रूम वगैरह भी साफ़ करना था, थोड़ा बहुत रूम सेट भी करना था क्योंकि काफ़ी दिन से असद गए हुए हैं और 1-2 दिन के लिए भी कहीं कभी जाते नहीं हैं, तो ये 5-6 दिन बहुत ज़्यादा लग रहे थे। पहले भी असद उम्रे पे गए थे पिछले साल, तो तब भी 1 हफ़्ते के लिए ही गए थे और अभी मलेशिया गए हैं तो ये भी 1 हफ़्ते के लिए ही गए थे। तो बस आज इंशाल्लाह असद की 9:30 बजे की फ़्लाइट है वापसी की। 9:30 बजे वो एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो मैं नूर ज़रा को लेके आ गई थी रात को घर पे। रात को आने के बाद पूरा रूम वगैरह साफ़ किया, कुछ कपड़े प्रेस करने थे, जो भी रोज़मर्रा के काम थे सारे काम निपटाए। रात में ये सारे काम निपटाए और सुबह 10 बजे से मैं उठी नहीं हूँ क्योंकि असद एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे और उनसे बात ही हो रही थी कि वो एयरपोर्ट पहुँच जाएँ। फिर वहाँ पे बारिश शुरू हो गई तो 1 से 1.5 घंटे में उन्होंने कहा था बस हम प्लेन में बैठेंगे। तो फिर वेट ही करते करते इसलिए मैं सुबह 10 बजे से उठी हुई थी और असद नहीं होते तो रूम में नींद ही नहीं आती अकेले, क्योंकि मैं कभी रुकी ही नहीं हूँ इस तरह अकेले। जब भी असद नहीं होते तो मैं मम्मा के यहाँ होती हूँ, कभी पिकनिक वगैरह पे भी गए होते हैं अगर नाइट स्टे पे, तब भी मैं मम्मा के यहाँ रुकती हूँ। मतलब मैं कभी भी अकेली रुकी नहीं हूँ ना घर में, तो इसीलिए मुझे डर ही लग रहा था, मतलब नींद ही नहीं आ रही थी रात में। और सुबह मैं जल्दी उठ गई, सारे काम निपटाए और सोने पे सुहागा ये हुआ कि आज हमारी मेड भी नहीं आई, कल भी नहीं आई थी और मैं इसीलिए रात को घर पे आई थी कि मैं सुबह मेड आएगी उससे सारे काम निपटा लूँगी, उसको बोलूँगी सारे काम कर दे तो फिर मेरा काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। लेकिन नहीं, किस्मत में यही था कि मेड नहीं आई तो सुबह उठते ही सारी सफाई वगैरह कर ली थी। बेडशीट वगैरह भी मैंने अभी चेंज करी है, ये बेडशीट मैं लेकर आई हूँ प्लेन बेडशीट, क्योंकि आजकल भाई प्लेन का ही फैशन चल रहा है। प्रिंटेड भी ली हैं मैंने, 3 ली हैं बेडशीट्स, 2 प्रिंटेड और 1 प्लेन। तो आज मैंने सोचा कि प्लेन बिछाते हैं।
ये वाले मैट्स भी मैं रात में ख़रीद के लेकर आई हूँ। थोड़ा सा रूम का लुक चेंज किया है। अभी थोड़ा सा बहुत फैला हुआ है, बॉटल वगैरह रखी हुई है, बस थोड़ा बहुत फैला हुआ है। तो ये मैं सब समेटती हूँ थोड़ी देर में। अभी टाइम हो रहा है 3 बजने वाले हैं और मैं अभी शावर लेकर आई हूँ। काम मेरे अभी ख़त्म हुए हैं, अभी भी सिर्फ खाना बनाना रहता है। खाने में मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, क्योंकि असद की फरमाइश है कि भाई चिकन कढ़ाई बना लो, क्योंकि वहाँ पे वो खाने पीने के लिए तरस गए हैं। इसलिए क्योंकि वहाँ पे खाना हराम और हलाल का वो है चक्कर, तो इस वजह से वो सिर्फ शवरमा ही खा रहे हैं। और असद को इतनी नई नई चीज़ें ट्राई करने का शौक़ भी नहीं है, उनको घर का खाना ही अच्छा लगता है, बाहर का इतना कुछ अच्छा लगता नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कढ़ाई बना लो चिकन की, उनको चिकन कढ़ाई बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं चिकन कढ़ाई बनाऊँगी और फिंगर फिश फ्राई करूँगी, कोल्ड ड्रिंक मंगवा लूँगी। और अभी मेरा कुछ मीठा बनाने का भी प्लान है, देखती हूँ। मैं अभी ऑर्डर करती हूँ क्रेव मार्ट से, मुझे कुछ सामान मंगवाना है। कस्टर्ड जेली उनको बहुत पसंद है, जो केक वाला ट्राइफल होता है, फ्रूट ट्राइफल, वो उनको बहुत पसंद है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वो बना लूँ। तो बस अभी 3 बज रहे हैं। सबसे पहले शावर लेकर आई हूँ, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हूँ। रूम मेरा साफ़ है, थोड़ा बहुत हुआ है वो अभी नूर ज़हरा कर देगी। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में और फिर मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। अभी मैंने चिकन भी फ्रीज़र से नहीं निकाली, तो बस चिकन निकाल के फ्रिज में रखते हैं। उसके बाद जब तक चिकन पिघलती है मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर आपको किचन में लेके चलेंगे और दिखाती हूँ कि मैं क्या बनाती हूँ। तो आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो भाई शाम के बज रहे हैं 4:30 और हमें 8, साढ़े 8, पौने 9 तक निकलना है एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि असद ने प्लेन में बैठते हुए कहा था कि भाई तुम लोग 9 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच जाना। मैं 9:15 भी आ सकता हूं, 9:10 पे भी आ सकता हूं और 9:30 भी। तो हमें 9 बजे एयरपोर्ट पे होना है। मैं और नूर ज़हरा चले गए थे सौदा लेने के लिए। मैंने सोचा चलो कस्टर्ड बना ही लेते हैं, तो कुछ सामान नहीं था वो लेना था। बाकी सामान तो मैं कल ले आई थी मम्मा के घर की तरफ से ही, लेकिन कुछ सामान रह गया था। तो असद को पता चलेगा, खैर असद अगर ये ब्लॉग देखेंगे तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं जाने देते हैं बाहर अकेले सामान लेने के लिए। सब चीज़ें वही लेकर आते हैं। और लेकिन मैं जो है ना, क्या कहते हैं, नूर ज़हरा के साथ आज चली गई थी, क्योंकि कोई भी नहीं है घर पे सामान लाने के लिए। तो मैं और नूर ज़हरा चले गए थे और सारा सामान लेकर आ गए। यहाँ पे मुझे जो लेना था, कोल्ड ड्रिंक भी ले लिया असद के लिए, फ्रूट वगैरह भी लेना था, थोड़ा बहुत कस्टर्ड में डालने के लिए दूध लेना था, जेली लेनी थी, जो भी चीज़ें लेनी थी सब लेनी। और प्लेन केक मुझे मिला नहीं, तो मैंने वहीं पे खड़े होकर सोचा कि भाई मैं बेक कर लेती हूँ, मेरे पास सारा सामान है और बेकिंग में मैं वैसे ही मास्टर हूँ। तो मैंने सोचा कि केक मैं क्यों ना बेक कर लूँ, क्योंकि बाहर का केक अगर कस्टर्ड में डालो तो वो कस्टर्ड पर अच्छा भी नहीं लगता, और ख़ुद फ्रेश बेक हुआ केक हो तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं ये सारी चीज़ें समेटती हूँ, किचन में सेट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ किचन में और आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। ये तो मैं अभी आपको फ़िलहाल बता देती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ, बाकी रेसिपी भी आपको दूंगी। मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ और फिंगर फिश को मसाला लगा हुआ है, बस उसको फ्राई करना है। और कस्टर्ड जेली बना रही हूँ, बाकी कोल्ड ड्रिंक, रायता, सलाद, यही वाला आइटम बना रही हूँ, क्योंकि असद इतना खाएंगे नहीं, मुझे पता है, बस वो एक ही चीज़ खाएंगे, कढ़ाई। तो मैंने इसीलिए सोचा साथ में फिंगर फिश फ्राई कर लेती हूँ और मीठे में कस्टर्ड बना लेती हूँ। ये सारा करती हूँ मैं, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी, केक की तैयारी सबसे पहले स्टार्ट करिए। यहाँ पर मैंने मैदा और बेकिंग पाउडर को छान लिया है। 4 अंडों का मैं स्पंज बना रही हूँ, तो ये 4 अंडे हो गए। और यहाँ पे मैंने 4 औंस मैदा लिया है और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, और यहाँ पे 4 औंस ही चीनी ली है। 4 औंस होता है 8 टेबल स्पून। तो यहाँ पे मैं एग सबसे पहले बीट करती हूँ अच्छी तरीके से कि अपने साइज़ में ये डबल हो जाएँ। कर रही हूँ साथ साथ 1-1 टेबल स्पून करके इसमें चीनी ऐड करते रहेंगे और इसको साथ साथ बीट करते रहेंगे। बीटर की स्पीड हमें नॉर्मल ही रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। ज़्यादा डालें, सारी डालें। चलें जी, यहाँ पे सारी चीनी डल चुकी है। मैं इसको अच्छी तरीके से करती हूँ बीट, फिर आपसे मिलती हूँ। देखें, यहाँ पे हमारे एग्स और शुगर बीट हो चुके हैं अच्छी तरीके से। कलर आप चेक कर लें, बिल्कुल वाइट हो चुका है एग्स का कलर। अब हमारा ये जो मैदा है, अब हम बिल्कुल स्लो स्पीड पे इसको 1-1 टेबल स्पून करके डालेंगे ऐसे करके, और इसको स्लो स्पीड पे विस्क करेंगे। स्लो स्पीड पे बस बंद गोल गोल घुमा।
बस ये बीट हो चुका है। अब इसको पैन में डालती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे सारा बैटर मैं पैन में पोर कर रही हूँ और बस ये बेक होगा। यहाँ पे हमने पतीला पहले ही प्री हीट करने रख दिया था और अब मैं इसमें अपना मोल्ड रखती हूँ और इसको ढककर अभी हम 40 मिनट्स के लिए बेक करेंगे, बिल्कुल स्लो आंच पे, दम वाली आंच पे। A few inches later. ये तो भाई यहाँ पे मेरा केक बेक हो रहा है। किचन मैंने साफ़ कर लिया। ये सामान अभी मुझे यूज़ करना है। एक मेरे पास जेली का पैकेट था ग्रीन वाला, रेड भी मैं ले आई हूँ। जल्दी से मैं जेली प्रिपेयर करती हूँ। ये तो सबको आती है प्रिपेयर करना, तो मैं जेली प्रिपेयर करके फिर आपसे मिलती हूँ। जी तो भाई जेली मैंने तैयार कर ली है और रख दी है फ्रीज़र में। ये देख सकते हैं रेड और ग्रीन जेली है। और यहाँ पे मेरी फ़िश जो मसाला लगी हुई है, ये मैं बाद में निकालूंगी, रात में आके फ्राई करूंगी एयरपोर्ट से। अब मैं आपको चल के दिखाती हूँ केक हमारा यहाँ रेडी हो चुका है। ये देखें आप, इतना ज़बरदस्त केक बेक हुआ है 4 अंडों का, ये देखें। और यहाँ पे मेरा कस्टर्ड के लिए दूध बॉयल हो रहा है। अच्छा, ये मैंने कस्टर्ड पाउडर इसमें डाल लिया है। मैं अभी इसको डिज़ोल्व करूँगी पानी में, उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी। यहाँ मैंने कप्स वॉश कर लिए हैं। सही है। यहाँ पे मैं केक ठंडा करती हूँ, इसके क्यूब्स करती हूँ और फिर लेयरिंग करते हुए आपसे मिलती हूँ। कस्टर्ड की सारी चीज़ें रेडी हैं। यहाँ मैंने केक के क्रम्स में जो है वो मेरे पास क्लासिनो का हॉट चॉकलेट पाउडर था, वो मैंने वो मिक्स करके रखा है ऊपर डेकोरेशन के लिए। यहाँ मेरा ये कस्टर्ड रेडी है और यहाँ पे मेरी दोनों जेलीज़ रेडी हैं। यहाँ पे बनानास, यहाँ पर केक। अब मैं जल्दी से इसकी लेयरिंग करती हूँ। अब मैं नूर ज़ारा को पकड़ाती हूँ मोबाइल और मैं जल्दी से करती हूँ लेयरिंग इसकी। तो सबसे पहले मैं ज़रा कस्टर्ड को थोड़ा वो करूँ, बहुत ज़्यादा अभी गर्म हो रहा है। टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट रह चुका है, 6 बजने वाले हैं। तो फटाफट से जो है वो लेयरिंग करते हैं। सबसे पहले मैं केक डालूंगी कप्स में। तो मैंने केक डाल दिया है, दिल खोल के डालेंगे क्योंकि हमने केक घर में बनाया है और घर में बन बेक हुआ हुआ जो केक होता है ना, वो कस्टर्ड में बहुत ही मज़े का लगता है। इतना ज़्यादा सॉफ्ट केक है। चले जी, केक डाल दिया मैंने। अब मैं इसमें बनाना डालूंगी क्योंकि कस्टर्ड में बनाना जेली के साथ बनानास बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे एप्पल मिले नहीं अभी घर के करीब कहीं, वरना मैं इसमें एप्पल्स भी डालती। तो खैर है, आज सिर्फ बनाना से काम चला लेते हैं, वरना मैं इसमें ग्रेप्स भी डालती हूँ और एप्पल्स भी डालती हूँ। तो यहाँ पे हम ज़्यादा से बनानास डाल देते हैं। उसके बाद फिर हम कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। थोड़ी सी इसमें जेली भी ऐड कर देती हूँ नीचे वाली लेयर में, बहुत थोड़ी सी, क्योंकि ऊपर डालूंगी मैं जेली से इसकी डेकोरेशन करेंगे कप्स में, क्योंकि साइड्स पे जेली अच्छी लगेगी। तो बिल्कुल साइड्स पे लगा रही हूँ मैं। कस्टर्ड और ट्राइफल में तो आपकी मर्ज़ी होती है, वही वाला हिसाब होता है, जितना गुड़ डालें उतना मीठा। तो आप लोग कुछ भी और ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स या फिर ओरियो बिस्किट्स, चॉकलेट सिरप, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं जो है वो अभी बस यही चीज़ें ऐड करी हूँ जो मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल थी। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं इसमें कस्टर्ड फिल करती हूँ। बिस्मिल्लाह। Few moments later. यहाँ पे हमारे ट्राइफल कप्स हैं एकदम रेडी। तो मीठा हमारा बन चुका है। अब इसको रखते हैं फ्रीज़र में ताकि ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। फिर हम आते हैं खाने की तरफ, कढ़ाई बनाते हैं जल्दी से। इसको फ्रीज़र में रखते हैं जल्दी से ताकि ये अच्छी तरीके से चिल हो जाए, क्योंकि ये ट्राइफल ठंडा ही मज़े का लगता है। 1 eternity later. जी भाई, तो फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी और 8 बजने वाले हैं। बस अब हम एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि बस आपको स्वीट डिश दिखाई, उसके बाद खाना तो दिखाया नहीं। अब मैं वापस आ जाऊँ, जब मैं फ़िश फ्राई करने लगूँगी उस टाइम मैं आपको अपनी कढ़ाई दिखा दूँगी, क्योंकि मैंने कढ़ाई बनाई है
बहुत झटपट, और रोटियां वगैरह भी बना दी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, टाइम इतना ज़्यादा शॉर्ट हो गया था कि बस बीच में असर की नमाज़ पढ़ी, काम करने लग गई, फिर मगरिब पढ़ी, काम करने लग गई। और अब जो है ना, बस मैं तैयार हो चुकी हूँ। अब मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रही हूँ क्योंकि 8 बज रहे हैं और 9 सवा 9 तक असद वहाँ पहुँच जाएंगे। तो बस ड्रेस बताएं मेरा कैसा लग रहा है, और दूसरा ये कि असद आते हैं तो वो आपको मिलवाते हैं उनसे, और टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा इतनी जल्दी हम लोग कैसे पहुँचेंगे। तो बस यहाँ पे मैं अभी व्लॉग को एंड कर रही हूँ, यहाँ से कंटिन्यू करूँगी एयरपोर्ट जाकर। तो हमें अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और 9:10 हो रहे हैं। 9:30 तक असद आ जाएंगे। अब जाके देखते हैं। यहाँ आके पता चला है कि अभी 35 मिनट है सेकंड नंबर पे कुआलालंपुर की फ़्लाइट। असद आ चुके हैं और बस अब जा रहे हैं गाड़ी के पास, गाड़ी में बैठने के लिए। नूरे ज़रा तुम क्या पकड़ी हुई हो? पोपट लाल की ये पोपट लाल की छतरी पकड़ी हुई है और बस जा रहे हैं। असद ड्राइव करेंगे। पूछते 5 दिन में भूल तो नहीं सकते वैसे, हाँ 5-6 दिन में क्या होता है। मिस कर रही हूँ अपनी गाड़ी को चलाने के लिए। पहले भी पैसे नहीं खा रहा तो क्या बोल रहा था? साफ करके लाया है। 2000 years later. असद घर आ चुके हैं और अब बज रहा है रात का 1। हमें आते आते इतनी ज़्यादा देर हो गई। आते ही बस खाना खाया है असद ने। मैं कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि नीचे ही बैठ के खाना खाया बस जल्दी से। और बस अब आपसे मिलते हैं कल एक नई ब्लॉग के साथ। असद को वहाँ कैसा लगा, क्या है, असद से भी आपको मिलवाएंगे सब कुछ कल, क्योंकि बहुत लेट हो गया है और सुबह है असद का ऑफिस। कल भी असद का ऑफिस है, सोचें एक दिन की भी छुट्टी नहीं है। तो बस अभी वो थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद सुबह ऑफिस चले जाएंगे। फिर इंशाल्लाह ऑफिस से आते हैं तो फिर आपसे मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके ये 5-6 दिन कैसे गुजरे, उनको हमारी याद आई भी कि नहीं आई, सब कुछ पूछते हैं। उसके बाद आपसे मिलते हैं। हमें अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।